So if we start revision, we will revise combiningly 2 days. Combiningly means whatever the chapter you have test form, it may be from any chapter the question may be there, and this is how we will revise. Suppose first question, if I am asking, we have learned several questions, and based on that we will discuss. So how many years is equal to 1 decades? 1 decade, or it may be asked how many year is equal to 1 century. सेंचुरी भी पूछा जा सकता है, डिकेड भी पूछा जा सकता है, ठीक है. तो it is depending upon the question whatever it will ask. So quickly, suppose the options are: option A is 5, option B is 10, option C is 100, and option D is 1000. So quickly tell me which option will be correct for decades. How many decades is how many years is equal to 1 decade? Quickly tell in message everyone. सभी मैसेज में बताएं कितने साल में एक डिकेड होता है. Just you can type A, option A, B, C or D. So option A is 5, option B is 10, C is 100 and D is 1000. So आपको बताना है how many years is equal to 1 decade. Quickly write in message everyone. Chat में लिखें, चैट में लिखिए कितने डिकेड में कितने साल में एक डिकेड होता है. आई गॉट आंसर फ्रॉम दिव्यांश, दृष्टि. एनीवन एल्स? तृप्ति? एनीवन एल्स? प्रिंस? ओके, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. इट्स 10 डिकेड. जिसका भी आंसर 10 है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. और अगर यहाँ पे सेंचुरी रहता है देन देन विच विल बी द करेक्ट आंसर? देन 100 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, अगर पूछा जाता है years is equal to 1 century, then it will be 100 year is equal to 1 century. So this type of questions may be there. Instead of century, it may ask for the another conversions also, which we have in our book, which we have learned in a particular chapter. Okay, now moving to the second types of question. Let us see what may be the second types of question. Second is, what will be the time after 4 hours? So this type of questions also we have discussed. What will be the time after 4 hours of 11:30 PM? So शाम को 11:30 के 4 घंटे बाद का टाइम आपको बताना है. सपोज ऑप्शन ए सपोज 1:30 AM, ऑप्शन बी 2:30 AM, ऑप्शन सी 3:30 AM and option D 3:30 PM. So quickly tell me which option will be correct. What will be the time after 4 hours? So quickly you just need to tell A, B, C or D which is the correct answer. जल्दी से चैट में बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा. शाम को और रात को 11:30 का 4 घंटे के बाद का टाइम क्या होगा? व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 4 hours of 11:30? रात को 11:30 बजे के 4 घंटा बाद का टाइमिंग आपको बताना है. सो जल्दी से ऑप्शंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे AM
1:30 AM है ऑप्शन, 2:30 AM है, 3:30 AM है और 3:30 PM है। 4 ऑप्शंस आपके पास है, ए, बी, सी और डी। सो जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। क्विकली टेल एवरीवन व्हाट इज दिस। अभिनव, इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, सो कैन quickly tell everyone which will be the correct answer. जल्दी से बताएं। I didn't receive any answers from anyone except Abhinav. Anyone else? Quickly tell. रात को 11:30 बजे, 11:30 बजे के 4 घंटा का बाद का टाइमिंग क्या होगा, जल्दी बताएं। पीहू परी। ओके, आई गॉट आंसर फ्रॉम पीहू परी। एनीवन एल्स? पीहू परी के अलावा कोई और? तृप्ति। ओके, कोई और? दृष्टि। वेरी नाइस। जिसका भी आंसर सी है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट एंड वेरी गुड। सो 3:30 in the morning will be the time after 11:30 PM। तो इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, वेरी इजीली है। 11:30 से हम लोग जो है 4 घंटा ऐड करेंगे। सो यहां पे अगर ऐड करेंगे 3, 11 plus 4 is 15, 15:30, but 15:30 will not be PM because यहाँ पे PM ऑलरेडी था, तो ये AM हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप इस तरह से कैलकुलेशंस के हेल्प से बेटर है, आप नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। जैसे 11:30 के 1 घंटा बाद 12:30 हो जाएगा, दैट विल बी इन AM। ठीक है, आफ्टर 1 hours, आफ्टर 2 hours it will be 1:30, after 3 hours it will be 2:30 and after 4 hours it will be 3:30। so 3:30 will be the correct answer। okay, तो यहाँ पे 11:30 की जगह पे कोई भी टाइम रह सकता है। इट मे बी 10, इट मे बी 9, इट मे बी 10:30, इट मे बी 10:45, इट मे बी 11, it may be 11:30, it may be 12 also। so whatever the time will be there after 4 hours you can calculate very easily। okay, so now let us move to the next type of questions। जल्दी जल्दी आंसर करने का कोशिश करिए, आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, suppose it may ask for the capacity of water tank should be measured in the capacity of water tank। वाटर टैंक जो होता है, पानी का जो टैंकी होता है ऊपर में जो लगा हुआ रहता है, उसका कैपेसिटी पूछा जा रहा था। कैपेसिटी ऑफ ए वाटर टैंक शुड बी उसका कैपेसिटी क्या होना चाहिए, मेजर्ड इन, किससे उसको मेजर करना चाहिए। सपोज ऑप्शन बी इज ग्राम्स, ग्राम में मेजर करना चाहिए। ऑप्शन बी इज इंच, इंच में मेजर करना चाहिए। ऑप्शन सी इज लीटर्स एंड ऑप्शन डी इज मीटर्स। So quickly tell me everyone what will be the correct answer, grams, inch, liters और meters। हम लोग का जो बेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, जो टैंकी होता है जिसमें पानी रहता है। एग्जैक्टली, आई एम गेटिंग आंसर एज सी। सो जिसका भी आंसर सी है इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। लीटर में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक पूछा गया है, यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। इंस्टेड ऑफ दैट इट मे बी आस्क्ड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities, इट मे बी आस्क्ड फॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इट मे बी आस्क्ड फॉर द हाइट ऑफ ए ट्री, इट मे बी आस्क्ड फॉर द योर ओन हाइट। ओके, सो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। इट मे बी आस्क्ड फॉर द एक पैकेट ऑफ राइस। ओके, सो इस तरह से जो भी पूछेगा उसका जो बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट होगा दैट यू हैव टू choose। okay, moving to the next type of question, question number 4। question number 4 is units। units आप लोग का तीनों का कंबाइंड चैप्टर है।
measurement of length, weight and capacity. So either it can ask for the unit of length, unit of weight or standard unit of capacity. तो एक यूनिट नॉर्मली कोई भी पूछता ही है. तो सपोज क्वेश्चन इज which is the standard unit of length, लेंथ मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो पूछा जा रहा है. सपोज ऑप्शंस आर गिवन. ऑप्शन ए इज मीटर, ओके, METER भी लिखा जाता है, METRE भी लिखा जाता है, ठीक है. ऑप्शन बी इज मिलीमीटर. ऑप्शन सी इज डेसीमीटर एंड ऑप्शन डी इज सेंटीमीटर. सो आपको बताना है इसमें से स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, क्योंकि सारा जो है वो लेंथ का यूनिट है, बट यहां पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? आई गॉट आंसर फ्रॉम मनुराज. एनीवन एल्स? कोई और? लेंथ मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है, बताएं. पीहू परी. आई गॉट आंसर फ्रॉम पीहू ऑल्सो. एनीवन एल्स? कोई और? प्रिंस माही. यस एग्जैक्टली. सो इट्स मीटर. ऑप्शन नंबर ए जिसका भी है, वेरी गुड. मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. तो इसी तरह से कैपेसिटी का भी पूछा जा सकता है, लीटर्स, और वेट का भी पूछा जा सकता है, किलोग्राम. ओके, सो ग्राम और किलोग्राम, और ये सारा नॉर्मली यूनिट्स होता है, बट स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक है. आफ्टर देन लेट अस डिस्कस अनदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज सपोज फिफ्थ 23 hours. 23 hours is, ये टाइम क्या है, ठीक है. सो यहां पे सपोज ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको. 10 और सपोज 23 है ना, तो यहां पे सपोज ऑप्शंस दिया हुआ है 2:23 PM. यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है 3:23 PM. ऑप्शन सी दिया हुआ है सपोज 11:23 PM एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 11:23 AM. तो इसमें से what is the correct time you have to tell. So here we know 24 or 0 means 12, right? So 23 means it will be 11 and 23 hours will be 23. So 11:23 PM will be the correct answer. So here option number C will be correct answer. Okay.